नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं क्या है खास मेरे और आपके लिए। सबसे पहली बात, रेपो रेट 5.1% से घटाकर 4.40% हो गया। इससे सभी तरह के कर्ज सस्ते होंगे। दूसरी बड़ी बात, आरबीआई ने मॉरेटोरियम की बात कही है, यानी सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो ग्राहकों से 3 महीने के लिए ईएमआई को लेना टाल दें। तीसरी बड़ी बात, आरबीआई ने सभी बैंकों का कैश रिजर्व रेशियो भी 1% यानी 100 आधार अंक घटाकर 3% कर दिया है। ये पूरे 1 साल के लिए 4% के बजाय 3% होगा। इसके तहत बैंक अपनी जमा राशि का कुछ फीसदी आरबीआई के पास रखते हैं। इसका मतलब अब बैंक की लोन देने की क्षमता और बढ़ जाएगी। कोरोना संकट में आरबीआई के राहत ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और इससे मिडिल क्लास और बिजनेस को फायदा होगा। If COVID-19 is prolonged and supply chain disruptions get accentuated, now these are risk factors which I am listing out. It all depends how we respond to the situation. I am just listing out the risk factors. Only time will tell how effectively we have acted as a nation and how effectively we have been able to contain the spread of coronavirus and how effectively we have been able to restrict its adverse impact on our growth. So if COVID-19 is prolonged and the supply chain disruptions get accentuated, the global slowdown could deepen with adverse implications for India. The slump in international crude prices could, however, provide some relief in the form of terms of trade gains. Downside risks to growth arise from the spread of COVID-19 and prolonged lockdowns. Upside growth impulses are expected to emanate from monetary, fiscal and other policy measures and the early containment of COVID-19. As regards inflation, the prints of January and February 2020 indicate that actual outcomes for the quarter are running 30 basis points above our earlier projections, reflecting the onion price shock. Looking ahead, food prices may soften even further under the beneficial effects of the record food grain and horticulture production, at least till the onset of the usual summer uptick. Furthermore, the collapse in the crude prices could work towards easing both fuel and core inflation pressures depending on the level of pass-through to the retail prices. As a consequence of COVID-19, aggregate demand may weaken and ease core inflation further. Heightened volatility in financial markets could also have a bearing on inflation. Given this heightened volatility, unprecedented uncertainty and extremely fluid state of affairs, projections of growth and inflation would be heavily contingent on, as I earlier said, the intensity, spread and duration of COVID-19. Precisely for these reasons, the MPC decided to refrain from giving out specific growth and inflation numbers because the situation is fast changing and the outlook is extremely uncertain. In fact, this kind of uncertain outlook has never been seen before. And as I mentioned earlier, I would again like to repeat that if we, all of us, every citizen, every person who lives in this country, if we follow the rules, if we follow the advices given by the government and other authorities, then as a country we should be able to win this war against COVID-19, in which case much of the worries that we have in our growth outlook would get considerably reduced. The MPC noted that macroeconomic risks both on the demand and supply side brought on by the pandemic could be severe. The need of the hour is to do whatever is necessary to shield the domestic economy from the pandemic. The Government of India has yesterday announced a number of measures which are expected to provide relief to various disadvantaged sections of the society. The MPC further noted that the Reserve Bank has taken several measures to inject substantial liquidity in the system. Nonetheless,
The priority is to undertake strong and purposeful action in order to minimize the adverse macroeconomic impact of the pandemic. It also underscored the need for all stakeholders to fight against the pandemic. Banks and other financial institutions should do all that they can to keep the credit flowing to the economic agents which are facing financial stress on account of the isolation that the virus has imposed. Market participants should work with regulators like the Reserve Bank and the SEBI to ensure the orderly functioning of markets in their role of price discovery and financial intermediation. Strong fiscal measures are of course critical to deal with the situation. To summarize, COVID-19 stalks the global economy and the outlook is highly uncertain and of course negative. Several nations are battling its exponential contagion. Countries are shutting down to prevent being sucked into a kind of black hole. Authorities all over the world are mobilizing on a massive scale to fight an invisible assassin. India has locked down economic activity and financial markets are under severe stress. Finance is the lifeline of the economy. Keeping it flowing is the paramount objective of the Reserve Bank of India at this point of time. The time has therefore now come for the Reserve Bank to unleash an array of instruments from its arsenal to staunch and mitigate the impact of COVID-19, revive growth and above all, preserve financial stability. The aggregate action and stance of MPC provides a befitting launching pad. In turn, the configuration of initiatives unveiled in the Statement on Development and Regulatory Policies, which I am now going to spell out, amplify the MPC's decision and leverages on it as well. Accordingly, it is appropriate that the MPC's decision and the other actions which I am now going to elaborate upon should be regarded as a comprehensive package with force multipliers. कोरोना की महामारी से पैदा हुए संकट के बीच रिजर्व बैंक ने मोर्चा संभालते हुए न केवल लोगों को राहत देने के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में नकदी की तंगी दूर करने और कर्ज सस्ता करने के लिए रेपो रेट और CRR में बड़ी कटौती जैसे कई उपायों की घोषणा की। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद इन उपायों की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 0.75% घटाकर 4.4% कर दिया। वहीं रिवर्स रेपो दर में 0.90% की कमी कर इसे 4% पर ला दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में कमी से कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक अल्प अवधि के लिए बैंकों को नकदी उपलब्ध कराता है। वहीं रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। बैंकों के पास अधिक नकदी उपलब्ध हो, इसके लिए उनके नकद आरक्षित अनुपात CRR को 1% घटाकर 3% पर ला दिया गया। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके CRR में कटौती और नकद धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपायों से बैंकिंग जगत में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध होगी। केंद्रीय बैंक ने देशव्यापी बंदी के चलते कर्ज की किस्त चुकाने में दिक्कतों को देखते हुए बैंकों को सावधि कर्ज की वसूली में 3 माह टालने की सहूलियत दी है। इसके साथ कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान पर भी 3 माह के लिए रोक लगाने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने लोगों को आश्वस्त किया है कि देश की बैंक व्यवस्था मजबूत है, उनका निजी बैंकों में जमा धन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराकर पैसा निकालना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI के रेपो दर में कटौती के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से नकदी में सुधार होगा, बचत होगी और मध्यम वर्ग और कारोबारी वर्ग को मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते देश की आर्थिक हालत और जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए फिल्म सितारों से लेकर खेल और व्यापार की दुनिया से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने आगे आकर कोरोना वायरस से लड़ने में देश की मदद करने के लिए बड़ा योगदान दिया है। गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में सबसे नए हैं।
उन्होंने कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए 50 लाख रुपए दान करने की घोषणा की। सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री राहत कोष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25-25 लाख रुपए देने का फैसला किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव मामले हैं। इससे पहले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राहत के लिए राशि देने वालों में नाम है बाहुबली कलाकार प्रभास का। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड को 3 करोड़ की बड़ी राशि दान की है। वहीं 50-50 लाख रुपए की रकम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड को दान किए हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने भी इस कार्य के लिए पहल की। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मुख्यमंत्रियों के राहत कोष की ओर 5 लाख रुपए प्रत्येक की राशि दान करती हूं। वहीं अंबानियों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दान करने का संकल्प लिया है। बता दें कि कोरोना वायरस का असर देश में अब भी देखने को मिल रहा है। भारत में अब तक कोविड-19 के 640 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 66 ठीक हो चुके हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अब बढ़कर 17 हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस संकट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी पर चीन का बहुत ज्यादा पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे बहुत लोग नाखुश हैं। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक सवाल पर पत्रकारों से कहा, वो WHO चीन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, इससे लोग खुश नहीं हैं। ट्रंप से उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मार्को रूबियो के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें उन्होंने WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। कई अमेरिकी सांसदों ने कोरोना वायरस से निपटने में चीन की तारीफ करने के लिए WHO की आलोचना की है। सांसद ग्रेग स्ट्यूब ने भी आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी के दौरान WHO चीन का मुखपत्र बन गया, जबकि सांसद जोस हॉले ने कहा कि दोनों को नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उसने जानकारी छुपाई। कुछ सांसदों ने यह भी मांग की है कि अमेरिका और दुनिया को हुए नुकसान की भरपाई चीन करे। कुछ सांसदों ने यह भी मांग की है कि अमेरिका और दुनिया को हुए नुकसान की भरपाई चीन करे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन ने अमेरिकियों की सेहत और जिंदगी खतरे में डाल दी। अमेरिका में अब तक करीब 70,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $2 लाख करोड़, करीब 150 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर मुहर लगाई। इस पैकेज को 96 मतों से पारित किया गया। इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान भी खाद, बीज, कृषि रक्षा, रसायनों की थोक और फुटकर दुकानें पहले की तरह ही खुली होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शासन द्वारा इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों, डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। सुचारू रूप से इनकी आपूर्ति जारी रहे, इसके लिए इनको बनाने वाली कंपनियों, लोडिंग अनलोडिंग में लगे श्रमिकों और इनके परिवहन में लगे वाहन भी छूट के दायरे में आएंगे। इसी तरह की छूट कटाई में प्रयुक्त कार्बाइन हार्वेस्टर भी होगी, क्योंकि इस साल फरवरी मार्च में मौसम की मार से ही यूं ही किसान परेशान है। मौजूदा समय में उनकी सरसों, आलू, मटर और चना की फसलें या तो खेत में हैं या फिर खलिहान में। गेहूं की फसलें भी तैयार होने को हैं। ऐसे में किसानों को चिंता थी कि लॉकडाउन की स्थिति में हम अपनी फसल को कैसे सुरक्षित पहुंचाएं। लेकिन योगी सरकार ने किसानों पर मेहरबान होते हुए उन्हें छूट दी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों, मजदूरों का पलायन जारी है। कोई पैदल जा रहा है तो कोई वाहन से, तो कोई जुगाड़ से अपने घरों की ओर लौट रहा है।
इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर हो रहे इस पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर बड़े पैमाने पर प्रवासियों, खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पलायन रोकने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन लोगों को मुफ्त अनाज और अन्य जरूरी चीज़ों के बारे में जानकारी दें, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान होटल, हॉस्टल, किराए के आवास चलते रहें और उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहे। वहीं कुछ तस्वीरें डरावने वाली भी देखने को मिली। जो मजदूर पैदल अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें मुर्गा बनाया, दंडित किया। वहीं कुछ तस्वीरें सुकून देने वाली भी देखने को मिली। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद की। दरअसल नगर में एक प्राइवेट संस्था है रोटी बैंक। रोटी बैंक गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है, लेकिन इस समय खाना बंद है तो इसके सदस्य गरीबों के घरों पर जा जाकर उन्हें राशन दे रहे हैं। आज लगभग 100 से ज़्यादा घरों में आटा, चावल, आलू के पैकेट दिए गए। यहाँ एक बात और देखने को मिली। दोपहर 12 बजे के करीब फिरोजाबाद एडीएम शिकोहाबाद आए हुए थे। उन्होंने रोटी बैंक के सदस्य हरचरण सिंह उर्फ चन्नी से फोन करके संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने शिकोहाबाद के एटा चौराहे पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ राहगीर चौराहे से गुजर रहे थे और वो भूखे थे। उसी समय ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता भी वहां पहुंच गए। राहगीरों को देखकर उन्होंने अपने घर से पूरी और सब्जी मंगवाकर राहगीरों को भोजन कराया। राहत की सांस लेते हुए राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा, रोटी बैंक के सारे ट्रस्टी जितने भी हैं उन लोगों के सहयोग से और शहरवासियों के सहयोग से कोई भी हमारे शहर में भूखा नहीं सो पाए। उसके लिए हम कच्चे सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। आलू, आटा, चावल ये लोगों के घर भिजवा रहे हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं 3। उन पर जो भी लोग फ़ोन करते हैं, कल 250 लोगों को दिया, अभी तक 150 लोग हो चुके हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अभी एडीएम साहब के ऑर्डर से हमने 200 लोगों को खाना खिलवाया है जो पैदल यात्री आ रहे थे, आने जाने वाले। और प्रशासन भी हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, शहर भी सहयोग कर रहा है। केवल आप बताएं कौन भूखा है, हम सामान घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन कृपया लोग अपने घर से ना निकलें, लोग अपने घर पर ही रहें। वहीं उन्होंने नगर की जनता से निवेदन किया है कि वह किसी भी समय संस्था के नंबरों पर फोन करके घर बैठे आटा, चावल, सब्जी मंगा सकते हैं, जिससे कि परिवार का गुजारा हो सके। चीज की परेशानी है बेटा, क्या करें हम लोग तो मजदूर आदमी तो चूल्हे मढ़िया रख के जाता है। अब क्या करें, आलू बीनने जाते थे, वो आलू भी हमारे बंद हो गए कि बाहर नहीं निकलो कुछ। अब आटा नहीं है घर में, कोई दाम पैसे नहीं है, वही लाते थे रोज, वही खाते थे हम लोग। क्या करें, अब तो मरने के पहिए हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे हमारे बच्चे, और क्या होएगा। यहाँ कोई मदद के लिए आता है क्या? कौन आता है, कोई नहीं देखता हम लोगों को। वो बेचारे अभी आए हैं तो बेचारे 1-1, 1.5 किलो आटा दे गए, वो ही पका के बच्चों को खिलाएंगे। अब क्या पता है, अब वो खिला के क्या पता है, जब नहीं बचेगा कुछ मर जाएंगे, चले जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी कि भूखे प्यासे सब लोग बेचारे ऐसे मर गए। क्या करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसके लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम उनका पूरा प्लान तैयार रखे है। सीएम ने बताया कि हम अभी 3rd स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। यदि ऐसे हालात बनते भी हैं तो किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 36 मामले थे, जो अब बढ़कर 39 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली के इन सभी 39 पॉजिटिव केसों से 29 बाहर से आए थे और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था, और इनमें से 10 स्थानीय मामले हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर स्थिति बढ़ जाती है तो दिल्ली सरकार हर रोज़ कोरोना के 100 नए मामलों से निपटने के लिए तैयार है। हमारी टीम
हर दिन 500 से 1000 मामलों से निपटने की तैयारी कर रही है। अस्पतालों में एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टाफ तैयार किया गया है। सबको मेरा नमस्कार। कल तक दिल्ली में 36 केस थे कोरोना के, आज 3 और बढ़ गए हैं। आज 39 केसेस हैं कोरोना के, जिसमें 39 में से 29 केसेस वो हैं जो बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था, वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं। और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है। लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। एक दिन में 3-4 केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे। कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा। लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिति है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम, इंग्लैंड में भी, यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम। डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है, सारी तैयारियों का प्लान बना के, कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर, तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है। इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। एक है कि अगर डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज़ 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं, रोज़ 500 रोज़ केस आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज़ आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज़ 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है। अभी 100 तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन 3 आ रहे हैं, किसी दिन 4 आ रहे हैं, अगर ये बढ़ के 100 पर डे भी हो जाते हैं, तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है, आज हम जिस स्थिति में हैं, वो काफ़ी है। इसको हमने 4-5 चीज़ों में देखा है कि हमारे पास आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1000 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, वेंटिलेटर्स, कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी, 1000 होते हैं तो कितने की पड़ेगी। कितने ICU बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर स्टेज पे कितने कितने ICU बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी टेस्टिंग क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं। अगर 100 पेशेंट डेली आ रहे हैं, तो मोटे मोटे तौर पे हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे, दूसरों के, सस्पेक्ट्स के, फैले वालों के, कॉन्टैक्ट्स के, कितने टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एम्बुलेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 100 केस में कितने एम्बुलेंसेस, 500 में कितने एम्बुलेंसेस, 1000 में कितने एम्बुलेंसेस। कितने डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने इस डॉक्टर्स की टीम ने की है। तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है। 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी हैं। ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं।
वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो कमियां हमें नज़र आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारी मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहाँ हमें कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं। उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति, ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। दूसरा है जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रैन बसेरों में खाना खिला रहे थे। हमारे 224 रैन बसेरे चल रहे थे अभी तक, लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पड़ते जा रहे थे। डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। 224 रैन बसेरे भी कम पड़ रहे थे और कई जगह से खबर आ रही थी कि यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है। तो इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतज़ाम किया है। 325 हर स्कूल में कम से कम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम, दोनों टाइम 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे, उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2 लाख, 10 गुना आज से बढ़ा रहे हैं। 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। मैंने अपने सभी एमएलएज़ को बोला है कि सभी एमएलएज़ की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके इंश्योर करें। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, समाज को, जैसे मैंने बार बार कहा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा। समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। जहाँ जहाँ और व्यवस्था करने की ज़रूरत है, खाने की व्यवस्था करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालू हो जाए। ये लॉकडाउन सारा बेकार हो जाएगा अगर हमने ये सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहाँ पे अगर कोरोना फैलना चालू हो गया। तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, मैं अभी देख रहा था जो हमारे रैन बसेरे हैं, वहाँ पे मीडिया के लोग भी गए थे, वहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे हैं। कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं। इस्कॉन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं। वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और ख़ुद भी काफ़ी चला रहे हैं। और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन दिनों में, पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सीमाओं के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। वो सब हमारे हैं। वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के। वो अब हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं। अब उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
तो एक व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी। अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। और सभी राज्यों के, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। मैं देश के सभी अन्य राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी, ये समय बहुत कठिन समय है, सबको तकलीफ़ें हो रही हैं, सब तकलीफ़ों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम तकलीफ हो। धन्यवाद। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वो इन राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की रहने और खाने की व्यवस्था करें, जिसका आर्थिक भार खुद यूपी सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह 12 राज्यों जिनके लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी मदद के लिए हमने नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है, जिससे उन्हें कोई दिक्कत न हो। आपको बता दें कि 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने प्रदेश को लौट रहे हैं। उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसे लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। छोटे व्यवसायी और समाज के विभिन्न तबकों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा एक सराहनीय पहल है। हम इस पैकेज का अभिनंदन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज 80 करोड़ से अधिक लोगों जो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा देने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। सचमुच ये प्रयास अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर हमने सभी 75 जनपदों में सफलतापूर्वक अपने 23 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई पूरी तरह प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। इस दृष्टि से हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, रिक्शा, पल्लेदार, इन सब के लिए पहले से ही हम लोगों ने भरण पोषण भत्ते की भी घोषणा की है। अंत्योदय, मनरेगा मजदूर और अन्य सभी परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी सभी लोगों तक पहुंचाने की एक कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। ये कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ न हो, इस पर हमारा फोकस है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर घर
लोगों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने की दिशा में पूरे प्रदेश में 18,750 वाहन इस सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं। खासतौर पर यह सेवा हम लोगों के द्वारा दूध की आपूर्ति घर घर करने में, सब्जी की आपूर्ति घर घर तक पहुंचाने में, खाद्यान्न की आपूर्ति घर घर पहुंचाने में, इसके अलावा जो निराश्रित लोग हैं, रेन बसेरों में रह रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्र में रह रहे हैं, निर्माण श्रमिक हैं, जिनके पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं कि भोजन बना सकें या कोई कर सकें, उनके लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने भी युद्ध स्तर पर आगे जा करके अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है। वे वॉलंटियर्स जगह जगह जा कर के प्रशासन के साथ सहयोगी बन करके उन्हें घर घर तक या उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आज 7 लाख लीटर से अधिक दूध हम लोगों ने उन ज़रूरतमंदों परिवारों तक पहुंचाया है जो दूध के लिए जिन लोगों की डिमांड थी या जो लोग मार्केट में या डेयरी में जाकर के दूध खरीदते थे, उन लोगों के घरों तक पहुंचाने की एक कार्रवाई सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर की गई है। इसके अलावा सब्जी के ठेलों को, खाद्यान्न की आपूर्ति को, दवा की आपूर्ति को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई की गई है। 60,000 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सेवाएं भी देने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत से संवाद बनाना, बाहर से आए हुए लोगों को ट्रैक करना, उनके उपचार और उन्हें यहाँ पर प्रदेश के अंदर होम क्वारंटाइन के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी और जनता की सुविधा की दृष्टि से भी, राज्य के जो लोग बाहर रहते हैं उन दृष्टि से भी हम लोगों ने आज 11 कमेटियों का गठन किया है। यूपी का एक्शन प्लान कोरोना वायरस की दृष्टि से जो हमारा तैयार होना था वह प्रभावी हो चुका है, जिसमें एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम कर रही है। यह कमेटी इंटर स्टेट से जुड़े हुए मामले, भारत सरकार के साथ संवाद बनाना, साथ साथ निर्माण श्रमिक, साथ साथ शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, सेवा योजन से जुड़े हुए लोगों को और अन्य राज्यों में जो हमारे कार्यरत श्रमिक हैं या अन्य जो भी कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ संवाद बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी कार्य कर रही है और इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। दूसरी कमेटी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आईडीसी की औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई है। इस कमेटी में हम लोगों ने औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को, साथ साथ श्रम और सेवा योजन के प्रमुख सचिव को इसके साथ जोड़ा है। और इस कमेटी का काम है कि जितने भी निर्माण श्रमिक हैं, जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इन सभी से जुड़े हुए सभी लोगों को जो छुट्टी दी गई है लीव विथ सैलरी के साथ, इसको सुनिश्चित करना, श्रमिकों को उनका भरण पोषण भत्ता समय पे मिल सके, इसके लिए कमेटी कार्य करेगी और निरंतर इसको प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य भी करने का कार्य तेजी से इन्होंने कर दिया है, जिसमें ठेला है, रिक्शा है, खुमचा है, रेडी है, पटरी व्यवसायी हैं, इन सबको भी 1,000 रुपये का तत्काल भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ ही हर जनपद में जिलाधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र जिन्हें किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है और उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तत्काल 1,000 रुपये की धनराशि और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था वे इस स्तर पर करें। तीसरी कमेटी जो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में है, इसमें प्रमुख सचिव कृषि हैं, प्रमुख सचिव खाद्य और रसद हैं, ये सभी लोग मिलकर के इसमें काम कर, डायरेक्टर मंडी भी हैं। इस कमेटी के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी
यानी घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की कार्रवाई ये कमेटी कर रही है। इस कमेटी के द्वारा एक एक चीज़ को मॉनिटर करने का, दूध है, सब्जी है, खाद्यान्न है, यह कमेटी घर तक, हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई इस कमेटी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार हर जनपद में इसके लिए इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में है। लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए ये कमेटी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जिसमें ज्वाइंट पेट्रोलिंग, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की, कमिश्नर और आईजी की, इसी प्रकार से निचले स्तर के एडीएम और एडिशनल एसपी की, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डिप्टी एसपी की, ये कमेटी इसको देखेगी। लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कार्रवाई करना, जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ, अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई ये कमेटी इसमें देख रही है। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में है, जो राहत आयुक्त के साथ ही विभिन्न विभागों के एक एक प्रतिनिधि को रख करके 24 घंटे कंट्रोल रूम प्रदेश के साथ साथ हर एक जनपद में इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने की कार्रवाई कर रही है। कंट्रोल रूम से सारी व्यवस्थाएं जुड़ चुकी हैं, इसको आगे बढ़ाने का कार्य एक कमेटी देख रही है। छठी कमेटी हम लोगों ने जो बनाई है वह प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में है, जिसमें प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव आवास, ये सभी लोग इसके साथ में हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को 100% आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एक कमेटी कार्य कर रही है। ये उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। सातवीं कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ ही प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव एमएसएमई, इन सबको रखा गया है और इनकी एक कमेटी इस पर कार्य कर रही है। होम क्वारंटाइन को चेक करना, हॉस्पिटल में भी जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का स्टाफ है या इस सेवा के साथ जुड़े हुए उन लोगों को भी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रूम की व्यवस्था उनके लिए करना, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना और दवा की आपूर्ति, मशीन, मास्क, ग्लव्स, पीपीई, इन सब की आपूर्ति को यह कमेटी देख रही है। पूरे प्रदेश के अंदर इस कमेटी के द्वारा अब तक 11,000 से अधिक आइसोलेशन के बेड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और कुशलतापूर्वक ये कार्य कर रही है। ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ जांच आदि की कार्रवाई को भी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज में, इंस्टीट्यूट्स में हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। यह भी युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य ये कमेटी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में बनाई है। सभी पुलिस लाइन, सभी थाने, सभी ट्रेनिंग सेंटर, सभी प्रकार के जो पीएससी की बटालियन और वाहिनियां हैं, इन सब में स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, आवश्यकता पड़ने पर मैन पावर की आपूर्ति फील्ड में तैनात करने के लिए उपलब्ध कराना और वहाँ पे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था के साथ ही जेलों में भी जो कैदी मौजूद हैं उन सभी को हम लोग कैसे सैनिटाइज कर सकें, कैसे उनको भी हम लोग कोरोना वायरस से बचा सकें, इसके बारे में डीजीपी की अध्यक्षता की कमेटी काम कर रही है, जिनमें डीजी जेल मौजूद उनके साथ हैं, डीजी ट्रेनिंग उनके साथ में हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी पीएससी हैं, ये सभी लोग उनके साथ इस कमेटी में काम करने कार्य कर रहे हैं। एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, जो पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो IGRS पोर्टल और CM हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आम जनता की सेवा के लिए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। एक कमेटी हमने 11वीं कमेटी जो बनाई है वो बनाई है प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में। ये कमेटी 10वीं कमेटी है जो प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता की कमेटी गोवंश के लिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जा सके
और यह युद्ध स्तर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। दुग्ध की आपूर्ति भी मार्केट में हो सके, फिर उसे हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर पहुंचा सकें। इस दृष्टि से यह कमेटी, इसमें प्रमुख सचिव पशुपालन की कमेटी इस पर कार्य करेगी। और 11वीं कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनाई है। वर्तमान स्थिति में कहीं भी कोई धन की कमी न होने पाए, इसके लिए कमेटी बनेगी। साथ साथ भविष्य की रणनीति, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में भी ये विस्तृत रूप से कमेटी कार्य करेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को, प्रमुख सचिव कृषि को, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को, इन सबको इसके साथ रखा गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव कृषि को इस बारे में कहा गया है, प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव खाद्य के किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल और आलू फसल तैयार हो चुकी होगी, इसके बारे में रणनीति बनाएं कि प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे। ये कमेटी इस पर कार्य करने जा रही है। इस प्रकार से 12 कमेटियां पूरे प्रदेश के अंदर बनकर के प्रदेश के अंदर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोरोना को परास्त करने के इस अभियान में सहभागी बनना, किसी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी महिला को, किसी भी नागरिक को, मजदूर हो या व्यवसायी हो, किसी को भी कोई समस्या न होने पाए, इसके बारे में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर एक व्यक्ति तक उसकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य, उस जो भी शासन की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो राहत पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने घोषित किया है, ये निश्चित ही दुनिया का एक यूनिक मॉडल होगा और हम लोग कोरोना को परास्त कराएंगे। कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और भारत का ये मॉडल दुनिया के अंदर भी हर एक देश अपनाएगा। इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ चल रही इस मुहिम में प्रत्येक प्रदेशवासी सहयोगी बने, लॉकडाउन की पूरी कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें, ये मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में उनको कुछ परेशानी हो सकती है, तात्कालिक है ये, लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए ये तात्कालिक उठाए गए कदम हैं। हम सब इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ये मेरी सबसे अपील होगी। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती, जैसे कि हम और हमारा साथ। हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। अब तक हमारे 724 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इन सभी केसेस में प्रोटोकॉल के हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं। अब तक टोटल जो डेथ रिपोर्ट हुई हैं वह 17 हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 75 नए मामले और 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कोविड से जितनी भी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उनमें मुख्य रूप से जितने पेशेंट थे उनको या तो मधुमेह या हार्ट डिजीज या हाइपरटेंशन के लक्षण भी थे। इन सभी मामलों में मुख्यतः हमारे एल्डरली पेशेंट थे जिनमें दूसरी बीमारी के लक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी थे। आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय से सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए बड़े प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव अप्रोच के तहत कार्य कर रही है और प्रेजेंटली ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रांसमिशन के इस प्रोसेस को तोड़ने के लिए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को 100% इफेक्टिवली लागू करें। इसी संदर्भ में कल माननीय हेल्थ मंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी सभी स्टेट के हेल्थ मंत्रियों के साथ, सभी स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ और उनसे अनुरोध किया था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से हर स्टेट में, हर जिले में लागू किया जाए। उन्होंने राज्य से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में नागरिकों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
राज्यों से डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनको अपनी सर्विसेज के लिए अटेंड करने के लिए जो यात्रा व्यवस्था है उसके भी सभी जो उनको सपोर्ट है उसको स्टेट में प्रोवाइड किया जाए, वो भी रिक्वेस्ट की गई थी। मुख्यतः उन्होंने सभी राज्यों से कोविड-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि पीपीईज और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज रानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में महसूस की गई थी, उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए, इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ANMs, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब हम अभी बात कर रहे हैं, उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया, उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने
जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, या हो तो कम से कम हो, और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो। उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश का में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है, और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है, उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्गो मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट किए जा रहे हैं कि कार्गो मूवमेंट को वो इंश्योर करें। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का मूवमेंट ना हो, और इसी श्रृंखला में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका जो लार्ज स्केल मूवमेंट चल रहा है, इसके बारे में होम सेक्रेटरी ने आज स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज को पत्र लिखकर फिर से निर्देश दिया है कि वे इस पर ध्यान दें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे एनजीओज, CSR इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीजन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया है, उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने अपने पत्र में सभी स्टेट्स और यूटीज को फिर से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं उनका ध्यान दें। होटल्स, रेंटेड अकोमोडेशन इत्यादि को ओपन और फंक्शनल रखें, परंतु सभी कोविड-19 से संबंधित जो एहतियात हैं उनको भी बरतें। आज गृह मंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का निदान करने के लिए अनुरोध किया है। अभी होम सेक्रेटरी ने इन मुद्दों पर डीजीपीज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की। उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये फील्ड लेवल तक, कटिंग एज तक पर्कुलेट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट मेजर्स के साथ एम्प्लॉयर्स को उचित निर्देश देकर, फूड और शेल्टर की व्यवस्था करके, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंतजाम करके हम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।
कुछ बेहतर।